नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी सीटीएस में हुए सबसे बड़े बदलाव, कंटिन्यूअस क्लियरिंग के नए रूल्स को समझेंगे। ये अपडेट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सीटीएस सिस्टम अब बैच प्रोसेसिंग से किस नए ऑपरेशनल मॉडल पर शिफ्ट हो रहा है? The check truncation system, CTS, is mandated to transition from the current approach of batch processing to which new operational model? Option A, Deferred Net Settlement, DNS, with T+1 finality. Option B, Continuous Clearing with Settlement on Realization. Option C, Batch Processing with Settlement on T+0 basis. Option D, Real-Time Gross Settlement, RTGS, integration. सही जवाब है ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस क्लियरिंग विद सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन। मान लीजिए पहले चेक बैच में जमा होकर अगले दिन क्लियर होते थे। अब इस नए मॉडल में जैसे ही चेक प्रोसेस होगा, उसका सेटलमेंट रियलाइजेशन के आधार पर तुरंत शुरू हो जाएगा। आरबीआई ने चेक क्लियरेंस को तेज करने के लिए यह बदलाव किया है। अगले सवाल में देखते हैं कि ये बदलाव किस तारीख से लागू हो रहे हैं। कंटिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम को लागू करने के फेज और तारीखों के बारे में कौन सा कथन सही है? Which of the following statements regarding the implementation phases for the continuous clearing and settlement system are correct? 1. The transition will be implemented in two phases. 2. Phase 1 shall be implemented on 4th October 2025. 3. Phase 2 shall be implemented on 3rd January 2026. 4. Phase 2 shall be implemented on 31st December 2025. Option A, 1, 2 and 4 only. Option B, 1, 2 and 3 only. Option C, 2 and 3 only. Option D, 1 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। यह ट्रांजिशन 2 चरणों में होगा। फेज 1 4 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और फेज 2 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा। याद रखें, फेज 2 की तारीख नए साल के पहले हफ्ते में है। अब देखते हैं कि बैंकों के लिए काम करने के घंटे क्या तय किए गए हैं। कंटिन्यूअस क्लियरिंग के तहत सेशन टाइमिंग और डेडलाइन के बारे में इनमें से क्या सही है? Which of the following statements regarding the specific session timings and deadlines under the continuous clearing system are correct? 1. The single presentation session is operated from 10 a.m. to 4 p.m. 2. The confirmation session for Droy banks is operated from 10 a.m. to 7 p.m. 3. During phase 1, the item expiry time for confirmation is set at 4 p.m. 4. During phase 1, the item expiry time for confirmation is set at 7 p.m. Option A, 1, 2 and 4 only. Option B, 1, 2 and 3 only. Option C, 2 and 4 only. Option D, 1 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं। चेक प्रेजेंट करने का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक है, जबकि कंफर्मेशन का समय शाम 7 बजे तक खुला रहता है। फेज 1 में आइटम एक्सपायरी टाइम यानी कंफर्मेशन की आखिरी समय सीमा शाम 7 बजे तय की गई है। क्या बैंकों को चेक प्रोसेस करने के लिए बैच का इंतजार करना होगा? बैंकों और ब्रांचों के लिए कंटिन्यूअस इनवर्ड प्रोसेसिंग के वर्कफ्लो के बारे में सही कथन चुनिए। Which of the following statements correctly describe the workflow requirements for continuous inward processing by banks and branches? 1. Branches must scan and send checks to the clearing house continuously during the presentation hours. 2. Droy banks must process inward checks on a real-time basis as soon as images are received. 3.
Confirmations, positive or negative, must be sent to the clearing house immediately after processing. 4. Banks are permitted to batch their confirmations and transmit them once at the end of the session. Option A, 1, 2 and 3 only. Option B, 2, 3 and 4 only. Option C, 1 and 2 only. Option D, 1, 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए। नए नियमों के मुताबिक सब कुछ कंटिन्यूअस होना चाहिए। ब्रांचों को लगातार चेक स्कैन करके भेजने होंगे और ड्रॉई बैंक को रियल टाइम में इमेज प्रोसेस करके तुरंत कंफर्मेशन भेजना होगा। मान लीजिए कोई बैंक शाम तक कंफर्मेशन रोक कर रखता है, तो यह गलत होगा। बैचिंग की अनुमति नहीं है। आइटम एक्सपायरी टाइम की सही परिभाषा क्या है? कंटिन्यूअस क्लियरिंग फ्रेमवर्क में आइटम एक्सपायरी टाइम की सही परिभाषा क्या है? In the context of the continuous clearing framework, what is the specific definition of item expiry time? Option A. The deadline by which the presenting bank must upload all check images. Option B. The specific time at which the settlement files are generated by the clearing house. Option C. The latest time by which confirmation for a presented instrument must be provided by the drawee bank. Option D. The time after which a check is legally considered stale. सही जवाब है ऑप्शन सी। आइटम एक्सपायरी टाइम वो डेडलाइन है जब तक ड्रॉई बैंक को चेक के लिए हाँ या ना में जवाब देना ही होता है। अगर कोई बैंक इस समय तक कंफर्मेशन नहीं भेजता, तो सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर सकता है, जिसे हम आगे समझेंगे। चलिए अब तक के जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। CTS अब कंटिन्यूअस क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन मॉडल पर काम करेगा। फेज 1 4 अक्टूबर 2025 और फेज 2 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा। चेक प्रेजेंटेशन सुबह 10 से 4 बजे तक और कंफर्मेशन शाम 7 बजे तक होगी। फेज 1 में आइटम एक्सपायरी टाइम शाम 7 बजे फिक्स किया गया है। प्रोसेसिंग रियल टाइम होनी चाहिए, कंफर्मेशन को रोक कर रखने या बैच बनाने की अनुमति नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। फेज 1 के दौरान अगर ड्रॉई बैंक शाम 7 बजे तक चेक कंफर्म नहीं करता, तो क्या चेक अनपेड माना जाएगा? During phase 1 of implementation, if a drawee bank fails to confirm a check by the designated item expiry time, 7 p.m., the check is automatically returned as unpaid. Option A, true. Option B, false. Option C, true, but only for amounts exceeding rupees 10 lakh. Option D, false, unless there is a technical failure at the clearing house. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यह स्टेटमेंट फॉल्स है। फेज 1 में अगर शाम 7 बजे तक बैंक कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो चेक को डीम्ड अप्रूव्ड यानी स्वीकृत मान लिया जाएगा और सेटलमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। यह पुराने सिस्टम से बिल्कुल उल्टा है, जहां कंफर्मेशन न मिलने पर चेक रिटर्न हो जाता था। फेज 2 में यह नियम कैसे बदल जाएगा, चलिए देखते हैं। 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले फेज 2 के ऑपरेशनल रूल्स के बारे में क्या सही है? Which of the following statements correctly describe the operational rules for phase 2, starting 3rd January 2026, of the continuous clearing system? 1. The item expiry time for checks is defined as T plus 3 clear hours from the time of receipt. 2. For a check received between 10 a.m. and 11 a.m., the confirmation deadline is 2 p.m. 3. If a drawee bank fails to confirm within the prescribed 3 hours, the check is deemed approved and included for settlement. 4. If a drawee bank fails to confirm within the prescribed 3 hours,
the check is automatically returned as unpaid. Option A, 1, 2 and 3 only. Option B, 2 and 4 only. Option C, 1 and 3 only. Option D, 1, 2 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए। फेज 2 में डायनामिक डेडलाइन होगी। नियम है T+3 क्लियर आवर्स। मान लीजिए बैंक को 11 बजे चेक मिला, तो उसके पास कंफर्म करने के लिए 2 बजे तक का समय होगा। अगर 3 घंटे में जवाब नहीं दिया, तो चेक ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे काम करती है? सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? Which of the following statements accurately reflect the settlement on realization mechanics? 1. Accounting entries are posted immediately upon the presentation of checks by the presenting bank. 2. Settlement is calculated every year, starting from 11 a.m. until the end of the session. 3. Settlement calculations include both positively confirmed checks and those considered deemed approved. 4. Accounting entries are passed for checks with negative confirmation to ensure a complete audit trail. Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 3 and 4 only. Option D, 1 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। चेक प्रेजेंट करते ही कोई एंट्री पास नहीं होगी। सेटलमेंट हर घंटे कैलकुलेट होगा, जिसमें कंफर्म किए गए और डीम्ड अप्रूव्ड दोनों तरह के चेक शामिल होंगे। नेगेटिव कंफर्मेशन वाले चेक, यानी जो रिजेक्ट हो गए, उनकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होगी। सेटलमेंट के बाद कस्टमर को पैसा कब मिलेगा? सेटलमेंट मिलने के बाद बैंक को ग्राहक के खाते में पैसे कब तक जमा करने होंगे? Upon receiving the settlement information from the clearing house, the presenting bank is mandated to release payment to the customers immediately, but not later than from the time of successful settlement. Option A, 30 minutes. Option B, 1 hour. Option C, 2 hours. Option D, 4 hours. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1 आवर। जैसे ही क्लियरिंग हाउस से सेटलमेंट की जानकारी मिलती है, बैंक को तुरंत ग्राहक को क्रेडिट देना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक इसमें अधिकतम 1 घंटे से ज्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए। इसका मकसद ग्राहकों को फंड्स का तेज एक्सेस देना है। चलिए अब देखते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। तो दोस्तों, आज हमने CTS के नए कंटिन्यूअस क्लियरिंग वर्कफ्लो और डीम्ड अप्रूवल के क्रिटिकल रूल पर फोकस किया। फेज 2 के T+3 टाइमिंग वाले नियम को जरूर पक्का कर लें, क्योंकि यह पुराने बैच सिस्टम से बिल्कुल अलग है और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये सेशन मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।